about economic system of Islam, we should know that Islam is a religion in our understanding, and it is proven as well, which actually strikes to the root cause of evil. Anything which is wrong, Islam tries to address the root cause, the very reason from where the problem is emerging, right? So while doing that, it intends to establish a very just and fair society, a society where justice prevails, and a society which provides equal opportunities to the individual, and a society which actually have a sense of equal distribution of resources and equal distribution of wealth, so they can be able to cater the group of individuals in a better way, and so that we would be able to curtail the element of crime, curtail the element of evil, right? The basic concept of economic system of Islam is having a halal means of earning, a thing, a domain, a factor through which you could earn in a halal way, right? So when we talk about the halal way of earning, what exactly do you think of? Anything which has no evil, anything which has no wrong meanings, anything which has no element of lie, fabrication or deceit, right? Or anything which comes into the category of crime or socially or morally wrongful act, right? A Muslim must earn his living in halal ways, and he should always bear in mind that whenever he does, it's known to Allah. It's known to Allah. Whatever we do, it is our faith that whatever we do, it's always each and everything known to Allah. Allah knows everything. Allah knows our deeds, whether they are good, whether they are bad, right? The economic system of Islam based upon few fundamentals. Some of them are mentioned here, right? I have already described the earning and expenditure by halal means anything which is having no intention or no involvement of wrongful deeds, right, in any way, right? Then we have an equal distribution of resources. Islam has devised a system, Islam has devised certain rules through which the resource allocation can be equal to the upper strata of society and to the lower strata of society, right? How is that possible? By implementing some taxes, by having some of the share of that very money which one wealthy individual is earning confined to be expend on people who are more deserving, who are more needy, right? People who have less opportunity in the society. Islam talks about those as well, those group of people as well, and Islam tries to care and to give them a sustainable life as well, right? And how it is possible? By implying some of the taxation, by implying some of the other means through which we would be able to contribute some of our money through charity, through humus, through ushur. I'm sure you must be aware of the humus and ushur. These are the terminologies which we will discuss later on, right? आपका जो है एक ज़कात होती है जो हम अपने माल पे निकाल रहे होते हैं, आपका खुमुस होता है, आपका उशर होता है. खुमुस 5वें हिस्से को कहते हैं माल के, उशर 6ठे हिस्से को कहते हैं. प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग हियर. आपकी जो ऐसे लोग जो के जमींदार होते हैं या जिनके खेत होते हैं, लेट्स से कि यू आर ग्रोइंग क्रॉप्स, ठीक है, आपका अजनास जो लोग उगा रहे होते हैं, फार्मर्स जो होते हैं बेसिकली, तो उनकी वो जो पूरी एक फार्मिंग है, जो उनका जितना भी गल्ला है, जितना कुछ उन्होंने, समझ लीजिए उन्होंने गंदम जितना भी उगाया है, उस गंदम का 6ठा हिस्सा उन्होंने चैरिटी करना है, लोगों की फलाह बहबूद के लिए देना है विदाउट चार्जिंग एनी पेनी. सही है. माले गनीमत का खुमुस 5वां हिस्सा, जो भी जंग के नतीजे में कोई भी ऐसा माले गनीमत हमें हासिल हुआ है, कोई भी ऐसी रिसोर्स हमें मिली है, मिनरल है, एनीथिंग, उस चीज को हमने स्पेंड करना है उन मोहताजों के ऊपर, उन जरूरतमंदों के ऊपर जो कि वहां तक एक्सेस नहीं रखते कि वो बाकी एक वेल्थ जो है वो एक्वायर कर सकें या अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से
गुजार सकें या सस्टेनेबल लाइफ हो जिनकी। ठीक हो गया। अच्छा, Islam views life as a compact whole and does not divide it into many separate and conflicting parts. It's a very simple religion. It does not divide on the basis of caste, creed or ethnicity. Muslims are not allowed to earn and spend in any way they like. आप हर तरह से चाहें तो आप अपनी रोजी नहीं कमा सकते। कुछ रूल्स हैं जो कि रेगुलेट किए गए हैं, जो डिवाइस किए गए हैं, यू हैव टू फॉलो देम। जैसे मैंने पहले बताया, हलाल होना चाहिए, उसके अंदर कोई गलत चीज ना हो, कोई ऐसा पेशा ना हो जिसमें आप झूठ बोल के पैसे कमा रहे हो, ठीक है, जिसमें आप कोई हराम काम कर रहे हो। जैसे आप मुसलमान हैं, आप अगर शराब बेचेंगे, अल्कोहल बेचेंगे तो दैट वुड बी हराम, उसकी अर्निंग भी हराम होगी। सही है। जो फंडामेंटल्स हैं उसकी बात हो रही है। आप जुआ आप नहीं दे सकते, आप कोई ब्राइबरी या इस तरह की चीज में इन्वॉल्व नहीं हो सकते। यानी कि अगर आप किसी एक पोजीशन पर हैं कहीं पे, किसी भी ऑफिस के अंदर, तो किसी का काम करवाने के लिए आप एक्स्ट्रा पैसे नहीं ले सकते उससे, जो कि हुकूमत ने कहा भी नहीं हो, जो कि आप खुद अपने तौर पे ले रहे हो। यू कैन नॉट डू दैट, राइट। आपको जो करना है वो हलाल तरीके से अल्लाह के बनाए हुए रूल के मुताबिक करना है। ठीक हो गया। अच्छा, any earnings from the production, sale and distribution of alcoholic drinks, मैंने ये पढ़ा नहीं था and it just came right. Any earnings from the production, sale and distribution of alcoholic drinks are unlawful, haram in Islam, as are earnings from gambling, lotteries and from interest, riba transactions, right. उसके बाद है any earnings by falsehood, deceit, as I mentioned, fraud, theft, robbery, bulgery is unlawful. सही है। कोई भी ऐसे मीन्स जिसमें आप जो है वो किसी से धोखाधड़ी के तहत झूठ बोल करके, चोरी करके, छीना झपटी, मोबाइल दे दो यार, बटवा दे दो यार, सही है, ऐसे नहीं करना होता है। ठीक है, ऐसे करके पैसे नहीं कमाने। आपने ऐसा कुछ भी कोई काम नहीं करना है जो कि अल्लाह की नजर में गलत हो। और आप देखेंगे कि जो काम इस्लाम ने मना किए हुए हैं ऑलरेडी, वो काम सोशली भी, कोई भी माशरा हो, चाहे वो इस्लाम को मानने वाला हो या ना हो, उस माशरे के अंदर वो काम प्रोहिबिटेड होंगे। ठीक है, ये आप कोई भी एग्जांपल्स लेके आप ये इस चीज को देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। ठीक हो गया। देन hoarding of food stuff and basic necessities, smuggling and the artificial creation of shortages and are unlawful. ठीक है, ये आयात के तर्जुमे हैं जो मैं पढ़ रही हूँ। ठीक है, इनके रेफरेंसेस यहाँ पे दिए हुए हैं कि कौन से पारे के अंदर कौन कौन सी आयात है और कितनी मर्तबा दोहराई गई है। तो इसमें क्या कहा गया है कि आपने गल्ले को, अनाज को, जो भी आपके पास कोई भी ऐसी जरूरत की चीज है माशरे में, जो डेली यूज की चीज है, उसको आपने अपने पास जो है उसका जखीरा अंदोजी नहीं करनी है। ठीक है, एग्जैक्टली। ब्लैक मार्केट, हाँ कह सकते हैं, उसकी जखीरा अंदोजी नहीं करनी, जैसे कि गंदम की लोग कर लेते हैं, चीनी की कर लेते हैं। ठीक है, उसके तरह की कोई ऐसी काम नहीं करनी। उससे होता क्या है कि जब आपने जखीरा अंदोजी कर ली तो उसके प्राइसेस जो हैं आप आर्टिफिशियली इंक्रीज कर देते हैं। आपको जो फायदा होता है वो फायदा अनलॉफुल है, वो फायदा रॉन्ग है, वो गलत है, वो आपका हराम है, क्योंकि आपने एक किसी की जरूरत को रोक करके आर्टिफिशियली आप अपने पैसे कमा रहे हैं। सिमिलरली स्मगलिंग, गलत तरीके से चीजों की इधर से उधर नकलो हरकत। ठीक है, इसके अलावा फिर आपका जो है आर्टिफिशियल क्रिएशन ऑफ शॉर्टेजेस, जो कि हम अक्सर देख रहे होते हैं कि पाकिस्तान में दिस इज वेरी कॉमन। गंदम सड़ जाती है, रखे रखे कीड़े पड़ जाते हैं, लेकिन लोग उसको आवाम तक नहीं पहुंचने देते। और इट्स नॉट कन्फाइंड टू वीट ओनली और अजनास ओनली, इट इज एक्चुअली वेरी मच इम्प्लाइड इन मेडिसिन एज वेल, फ्रूट्स एंड एवरी अदर थिंग विच इज अवेलेबल, रेडिली अवेलेबल। थोड़े अर्से बाद पता चलता है कि वो चीज जो है ना वो तो है ही नहीं, तो उसका जो है फिर आप शॉर्टफॉल एक क्रिएट करते हैं और उसके बाद फिर जो है उसकी कीमतें बढ़ती हैं। तो वो कीमतें, जाहिर सी बात है, जब दूध की कीमतें बढ़ेंगी, बाकी चीजों की कीमतें बढ़ेंगी, तो वो एक गरीब आदमी कैसे अफोर्ड कर पाएगा। जब वो गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर पाएगा तो वो अल्टीमेटली गलत मीन्स की तरफ जाएगा, क्योंकि शैतान है ना बहकाने वाला। इट इज वेरी मच रियल। जितना एक आपकी एग्जिस्टेंस रियल है, उतनी ही एक एग्जिस्टेंस ऑफ इविल और रॉन्ग भी रियल है, विच
कॉन्स्पायर्स के वो आपको किसी तरह गलत रास्ते की तरफ लेके जाए, ठीक है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स, आजमाइशें जो होती हैं, इसमें एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि आप जो है वो गलत रास्ते की तरफ खुद ब खुद चलते चले जाते हैं। आपकी जब जरूरतें पूरी नहीं होंगी, यू विल अल्टीमेटली opt for theft, opt for beggary, and opt for any wrongful or deceit or any other means which is not halal or permissible by Islam, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपका क्राइम रेट बढ़ेगा, ठीक है। आपने देखा कि एक चीज कैसे रिपल इफेक्ट क्रिएट हुआ आपका, आपने जखीरा अंदोजी कर ली, आपने जो है वो लोगों तक उस अजनास को पहुंचने नहीं दिया, और उसके नतीजे में जब बेसिक नेसेसिटीज अवेलेबल नहीं होंगी, वो कीमतें बढ़ी, तो वो आम आदमी जिसको चाहिए, सबको रोटी चाहिए, चीजें चाहिए, वो क्या करेगा कि वो आसानी की तरफ जाएगा। वो कहेगा कि मुझे किसी तरह से मेरी जरूरत पूरी हो, तो वो फिर क्राइम कमिट करेगा। और क्राइम कमिट करने से क्या होगा कि आपका माशरा जो है वो केओस का शिकार होगा, इंतशार का शिकार होगा, ठीक है। तो आप ये देखें कि एक पूरा सिस्टम डिवाइस हुआ है, और उस पूरे सिस्टम के नतीजे में, जो हमने लास्ट क्लास में भी बात की थी, कि अल्टीमेटली द कल्मिनेशन ऑफ दैट सिस्टम, द वेरी गोल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट सिस्टम इज टू हैव अ पीसफुल सोसाइटी, अमनो आतिशी वाला मुआशरा क्रिएट करना है ना, जहाँ पे कोई जंग ना हो, जहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आप ये देखें कि इतनी छोटी सी चीज जो आपने गल्ला कर लिया, इट इज अ वेरी बिग थिंग, बट आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल, कि एक चीज आपने गल्ला का जखीरा अंदोजी कर ली, उसके नतीजे में आपको कितना बड़ा एक इम्पैक्ट आया आपकी सोसाइटी के ऊपर, सही है। सो यू शुड ऑलवेज 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 जो है बाय, और यू शुड ऑलवेज अर्न फ्रॉम हलाल मीन्स, ठीक है। धोखाधड़ी देके नहीं, शॉर्टकमिंग्स, उसके कोई शॉर्टकट के जरिए नहीं, झूठ बोल के नहीं, अल्कोहल बेच के नहीं, कोई ऐसे काम करके नहीं जो कि गलत है अल्लाह की नजर में। राइट टू प्रॉपर्टी एंड इंडिविजुअल लिबर्टी, प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आपके वालिद, ये भी एक इकोनॉमिक टर्म्स के अंदर आता है ना, जमीन हमेशा से ही सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रही है। अब राइट टू प्रॉपर्टी एंड इंडिविजुअल लिबर्टी की जहाँ पे बात हुई है, तो इस्लाम अलाउज अ पर्सन टू ओन हिज अर्निंग, ठीक है। इस्लाम ने ये अलाउ किया है, इस बात की इजाजत दी है कि जो कुछ आप कमा रहे हैं, जो कुछ आपकी अर्निंग्स हैं, आप उसको ओन करें, ठीक है। आपका उसके ऊपर हक हो, वो चाहे जमीन हो, चाहे वो कोई आपका बिजनेस हो, चाहे वो कोई आपका कैटल हो, कुछ भी हो। आपके गांव में तो कैटल्स भी होते हैं ना, जो कि वैल्यूएबल होते हैं, और जिसको लोग जो है वो अपने पास रखते हैं, इसीलिए ताकि वो उससे अर्न कर सके, ठीक है। तो इस्लाम ने आपको ये हक दिया है कि आप उसको ओन कर सकें, और उसके बाद फिर वो इनहेरिटेंस, यानी कि वो आपकी औलाद तक वो चीज ट्रांसफर होती है, जो कुछ आपने अर्न किया, जो कुछ आपने अपने लिए रखा। और जब आप ये सब कुछ अपने लिए सेव कर रहे हैं, मेक श्योर कि आप बेसिकली जो उसकी ज़कात है, जो उसका खुमुस है, उशर है, जो कुछ भी टैक्सेशन इस्लामिक तरीके से उसके ऊपर जो है अप्लाई होती है, आप उसका ख्याल रखें, ठीक है। ये काम आपने करना है। उसके बाद आपके पास जो वेल्थ एक्यूमुलेट हो गई है, जो प्रॉपर्टी है, तो वो आपके बच्चों में, आल औलाद में फिर तकसीम होगी, ठीक है। देन वी हैव the system of zakat, which is a welfare contribution. zakat क्या है कि आपके पास एक खास कीमत का माल मौजूद है, ठीक है, और उस माल के ऊपर आपने उसका एक कुछ हिस्सा जो है, यानी उसके ऊपर कुछ परसेंट, कुछ फीसद हिस्सा जो है वो आपने खैरात करना है, उन लोगों को देना है जो कि जिनकी हैसियत नहीं है कि वो उस माल को एक्वायर कर सके, ठीक है। उतना ज्यादा माल जिनके पास हो, वो हैसियत नहीं है, वो कमजोर लोग हैं, वो गरीब हैं, नादार हैं, मोहताज हैं, आपने उन लोगों को अपने उस माल में से ज़कात देनी है, ठीक है। ये फर्ज है आपके ऊपर। अच्छा, अब अगर इसको देखा जाए, मजीद डिस्क्राइब किया जाए एकेडमिकली, तो कंपल्सरी, हाउ वी कैन डिस्क्राइब और हाउ वी कैन अंडरस्टैंड ज़कात इज अ कंपल्सरी पेमेंट ऑफ it is one of the main principles of Islam, and it is a compulsory payment which every Muslim has to pay by providing some of the share from his own wealth or his property or whatever the things he acquires, ठीक है। और इसकी जो एक फिक्स रेट होता है वो डिवाइस किया हुआ है, ठीक है। ज़कात इज अ मीन्स ऑफ नैरोइंग द गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर, जो बात हम अभी करते हुए आ रहे हैं इतनी देर से,
तो वो ये है, यू कैन नोट डाउन, यू कैन राइट डाउन एज वेल, मीनवाइल जो भी आप अंडरस्टैंड करें, यू कैन राइट इट डाउन एज वेल. Zakat is a mean to narrow down the gap between poor and rich. Zakat एक ऐसा टूल है जिसके जरिए से गरीब और अमीर के अंदर का फर्क जो है ना वो कम हो जाता है. ठीक है, मेरे पास अगर ये 2 पेन्स मौजूद हैं तो मैं अगर ये एक हिस्सा ज़कात कर दूंगी तो आपके पास, जिसके पास कुछ भी नहीं है, आपके पास एटलीस्ट कुछ होगा. तो वो गैप जो था वो थोड़ा सा कम हो गया ना, सोसाइटी के अंदर जो गैप था वो कम हो गया. और किसी सोसाइटी में और किसी मजहब में ये चीज नहीं है, इस चीज के ऊपर कोई बात नहीं करता है. इकोनॉमिक सिस्टम कहीं पे भी डिवाइस नहीं हुआ हुआ. हमें ऐसा लगता है, यू नो, वी टेक दीज सिस्टम्स, वी टेक दीज टीचिंग्स वेरी मच फॉर ग्रांटेड. ठीक है, हम इनको बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं बिकॉज वी थिंक कि हमें मिल गया है, हमें ऑलरेडी पता है सारा कुछ, इट्स जस्ट वेरी नॉर्मल थिंग. लेकिन when you deep dive, when you go very deep into this thing, when you go deep into the Islamic learning and systems of Islam, you get to realize that how apt they are, how accurate they are, how proportionate they are, and how appropriate they are for the system which is actually there to provide peace to the group of people. सही है? What Islam says about prohibition of interest. An Islamic economy is free of interest. 1. Islam prohibits all transaction involving interest, or interest is neither a trade nor a profit. It is a means of exploitation and concentration of wealth. Right? The Quran says, they say, trade is like the interest, and Allah has allowed trade and prohibited interest. कहते हैं कि trade is like interest and Allah has allowed trade and prohibited interest. तिजारत को अल्लाह ने हलाल किया और सूद को अल्लाह ने हराम किया. ठीक है, लेकिन लोग उसको खलत मलत कर देते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं अपने फायदे के लिए, टू गेन मोर ऑफ द प्रॉफिट. सही है? अच्छा, देन अगेन अनदर वर्स है, whatever you pay as interest so that it may increase in the property of other men, it does not increase with Allah. कहते हैं जो कुछ भी आप ऐसा पे करते हैं सूद के तौर पे किसी भी बंदे को उसकी दौलत बढ़ाने के लिए, आप ये जान रखें कि अल्लाह की नजर में वो दौलत नहीं बढ़ी है, अल्लाह की नजर में वो कुछ भी नहीं बढ़ा है. अल्लाह की नजर में वो उतना ही है, रादर के वो और गिर गया है क्योंकि वो सूद ले रहा है, बिकॉज इट्स अ मीन ऑफ एक्सप्लॉइटेशन. आप एक्सप्लॉइट कर रहे हैं किसी की मजबूरी को. ठीक है, इस वजह से सूद मना किया जाता है. ठीक है, अल्लाह ने तिजारत को हलाल किया, सूद को हराम किया. उसके बाद क्या कहा, ओ यू हु बिलीव डू नॉट टेक इंटरेस्ट. जो लोग ईमान वाले हैं, दे डू नॉट टेक इंटरेस्ट, वो सूद नहीं लेते. डबलिंग एंड क्वाड्रपलिंग, यानी कि उसको दुगना और चौगना नहीं करते. एंड कीप योर ड्यूटी टू अल्लाह सो दैट यू मे प्रॉस्पर. अल्लाह के साथ अपने मामला दुरुस्त रखें ताकि आप प्रॉस्पर कर सकें, ताकि आप तरक्की कर सकें, फल फूल सकें. ठीक है, तीसरे पारे की 130वीं आयत है. O you who believe, observe. Now another one. O you, तुम में से जो who believe, जो ईमान रखते हैं, observe your duty to Allah and give up what remains due from interest if you are believers. But if you do not do it, then be warned of war from Allah and His Messenger. And if you repent, then you shall have your capital. Do not exploit and be not exploited. कहते हैं कि अगर ईमान वाले हैं तो आप सूद नहीं लेंगे, और ये जान रखें कि ये अल्लाह से खुली जंग है और अल्लाह के नबी से खुली जंग है. ठीक है, और आप अगर रिपेंट करेंगे, आप माफी मांगेंगे, तो फिर आपके पास जो है वो आपका कैपिटल रहेगा या आपके पास वो कैपिटल होगा. लेकिन आपको एक्सप्लॉइट नहीं करना, आपको इस्तेहसाल नहीं करना है किसी का भी, ना आपने अपना इस्तेहसाल होने देना है, ना आपने सूद लेना है, ना आपने जो है वो करना है, आपने जो है कोई ऐसी चीज करनी है जिसकी वजह से आपको सूद देना पड़े. Modern economics are so interlinked with interest that people may think it is impossible to go without it. Modern economics, like the system we are having at the moment, the banking system we have, इसमें it seems nearly impossible कि हम interest के बगैर कुछ भी कर लें. For example, हम जो है वो उसमें मैं इंटरेस्ट नहीं ले रही, लेकिन आई हैव अ क्रेडिट कार्ड
और अगर मैं उसको सही टाइम पे उसकी वो नहीं करती हूँ, उसका स्टेटमेंट क्लियर नहीं करती हूँ, देन आई वुड हैव टू पे एक्स्ट्रा मनी, ठीक है, तो वो भी सूद हो जाएगा, तो वो फिर अल्लाह की पकड़ में आएगा ना, मैं फिर अल्लाह की पकड़ में आऊंगी। तो ये बड़ी छोटी छोटी सी बातें हैं, लेकिन ये बड़ी पकड़ वाली बातें हैं कि ये इतना इतना सा ग्रेन करके ही एक एक पैसा करके ही हम किसी और की वेल्थ बढ़ा रहे हैं, वो भी रॉन्गफुल मीन से। हो सकता है मेरे पास उस डेट तक इतने मेरे फाइनेंसेस ना हो कि मैं पे कर सकूं, ठीक है, सो व्हाट, आप क्या मुझसे एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे? ये प्रोहिबिट किया है इस्लाम ने कि आपने इंटरेस्ट नहीं लेना उसके ऊपर, आपने एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करना, लोगों की मजबूरियों से एक्सप्लॉइट नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, इस्लाम ने लेकिन जो है ना वो इस्टेब्लिश कर दिया है रिबा फ्री सिस्टम, सही है। अच्छा, नाउ वी हैव द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मिरास का जो लॉ है, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है। द इस्लामिक लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इज अ वंडरफुल सिस्टम ऑफ स्टॉपिंग द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। यानी कि अगर मेरे पास बहुत ज्यादा दौलत जमा हो गई है तो क्या जिंदगी भर मैं ही उस दौलत को लेके बैठी रहूंगी? नहीं, वो दौलत मेरे आगे आने वालों में भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, और इस्लाम ने ऐसे रूल्स डिवाइस किए हैं कि वो दौलत जो है वो मेरे आगे आने वालों में भी उसी तरह से तकसीम हो, ताकि वो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ जो है, कंसंट्रेशन ऑफ रिसोर्सेज जो है, वो दैट वुडंट बी कन्फाइंड टू माई सेल्फ ओनली, सही है। मैं अगर इसके ऊपर मुस्तकिल इख्तियार वो करूं, मैं अगर सिर्फ ये कहूं कि दिस इज जस्ट माइन, सही है, नोबडी कैन हैव इट, तो उससे होगा क्या कि जहाँ पे जो लोग आएंगे पढ़ाने के लिए उनको ये चीज अवेलेबल नहीं हो पाएगी ना, तो वो फिर एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी ना। जब आपके पास एक रिसोर्स है लेकिन मैं इसकी मालिक बन गई हूँ और मैं कहूंगी कि मैं ये आगे पास ऑन नहीं कर रही हूँ, ठीक है, तो उससे होगा क्या कि उससे एक सोशल आपका जो है ना वो डिफरेंस पैदा होगा, उसके बाद आपकी जो है ना वहां से कियोस स्टार्ट होगा, वही वो पूरी एक चेन स्टार्ट हो जाएगी जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है क्या। अच्छा, सूरत उन-निसा के अंदर बड़ा अच्छा रेफरेंस दिया हुआ है, वहां पे जो है ना ये जो आपके मीरास के जितने मामलात हैं तो सूरत उन-निसा के अंदर बहुत डिटेल से जो है वो उन्होंने डिस्कस किए हुए चीजें बताई दी हैं कि किसका कितना हिस्सा है, औलाद का कितना हिस्सा है, शौहर का, बीवी का, बाकी जो रिश्तेदार हैं उनका कितना हिस्सा है, अगर किसी की कोई प्रॉपर्टी है, कोई लैंड है, एनीथिंग व्हाटएवर समबडी पोजेसेस, ठीक है, उसका क्या है, किस तरह से वो सारा डिवीजन होगा, ये ऑलरेडी सारी चीजें बताई हुई हैं, ठीक है। बस these are the basic principles of Islamic economic system which have been laid down by the Sharia, ठीक है। और in Islamic state, because we call ourselves as a pseudo-Islamic state, it must bring all the productive resources into use, including unemployed manpower, unused land, water resources and mineral। कहते हैं कि एक इस्लामिक जो स्टेट है, हुकूमत है मिलके, उसको अपने जितने भी रिसोर्सेज है उनको सही तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए, उसको सही तरीके से इस्तेमाल जो है वो करना चाहिए, चाहे वो उनकी अनएम्प्लॉयड मैन पावर हो, ठीक है, चाहे वो उनके मिनरल्स हो, चाहे वो उनका वाटर हो, चाहे वो उनके दूसरे रिसोर्सेज हो, whatever we have, we should use that, we should utilize that, ठीक है। बहुत सारे ऐसे दस्तरखाने जहाँ पे मैंने देखा है बहुत सारे लोग खाना खा रहे होते हैं, ठीक है, उसमें से कैसे, लेट्स जस्ट हैव दिस थिंग हाइपोथेटिकली कि 50% लोग जरूरतमंद हैं जो वहां पे बैठ के खाना खा रहे हैं, जिनके पास नहीं है कुछ भी, वो अफोर्ड नहीं कर सकते। 50% ऑफ द पीपल, एज पर माई ऑब्जर्वेशन, द अनएम्प्लॉयड पीपल, दे आर देयर जस्ट टू हैव फूड, क्योंकि इनके मील्स कवर हो रहे हैं, दे डोंट डू एनीथिंग, दे आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू द सोशल प्रोग्रेस ऑफ पाकिस्तान, they are not doing anything, they are not contributing, they are not playing their part, right, and they are just there, उनको पता है कि यहाँ पे 3 टाइम का खाना मौजूद है तो वो खाना खा लेते हैं, लेकिन उनके जो वो जवान है, जो उनके अंदर ताकत है, उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रही है स्टेट। मेरा मानना ये है कि आप उन लोगों से जिनको आप खाना खिला रहे हैं, बेशक आप बुजुर्गों को छोड़ दें, आप एक एज डिफरेंस थोड़ा सा कन्फाइन कर दें, एक सिस्टम होना चाहिए ना, आप उनको किसी ना किसी तरह इस बात पे आमादा करें कि वो कोई ना कोई ऐसा काम करें जिसकी बुनियाद पे उनको वो खाना मिले। लेट्स से मैं ऐसा सोचती हूँ, दिस इज माय ओपिनियन,
एंड इट्स नॉट, आपका इससे मुत्तफिक होना जो है वो जरूरी नहीं है, सही है, आपका जरूरी नहीं है कि आप अग्री करें। आई थिंक दैट अगर आप उस इंसान को जो वहां पे खाना खा रहा है, आप उन लोगों को कन्फाइन कर दें कि जहां भी वो रह रहे हैं, जिधर भी वो है, वो वहां से कचरा उठा के एक डस्टबिन में डाल देंगे, somebody would monitor them, और उसकी बेसिस पे उनको वो खाना मिलेगा। आपको लगता है कि थोड़ा सा शायद सफाई हो जाए? वैसे ही, ठीक है, ऑल्दो वी हैव सैनिटरी वर्कर्स दिस एंड दैट, ये एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा वो लोग जो वहां पे हैं, खाना खा रहे हैं, जवान हैं, काम कर सकते हैं, सरकार के, गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, जहाँ पे और बहुत सारी चीजें हो रही होती हैं, क्या हम उन लोगों को वहां पे एम्प्लॉय नहीं कर सकते कि चले हम आपको खाना देंगे बट यू हैव टू डू समथिंग? आप बेशक एक पत्थर उठा के यहाँ से यहाँ करें, लेकिन आपने वो करना है, ताकि उनके अंदर डिग्निटी पैदा हो, उनके अंदर एक रिस्पेक्टेबल एक चीज, उनके अंदर एक एलिमेंट आए कि हमने ये अर्न किया है, ये खाना हमने अर्न किया है। इट्स नॉट समथिंग विच इज रेडिली अवेलेबल, राइट? Because those people are there and those people eat that food or enjoy those meals 3 times a day. There's an n number of people who are actually deserving, लेकिन चूंकि उनको वो मैसर आ जाता है, तो वो जो डिजर्विंग वाला हिस्सा है वो रह जाता है, वो वाले लोग जो है वो बाकी पीछे बच जाते हैं, ठीक है। और हो सकता है कि वो डिजर्विंग लोग जो हों, उनमें से कोई पढ़ भी रहे हों, उनमें से कोई वाकई जरूरतमंद हो, उनमें से कोई काम भी कर रहे हो, लेकिन उनके हालात इतने सही ना हो, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि सोशल इनजस्टिस किस तरह से, ये छोटी छोटी चीजें जो है ना, वो सोशल इनजस्टिस कैसे क्रिएट करती हैं। आई सी अ लॉट ऑफ बेगर्स, सही है, एवरीवन इज बेगिंग, men who are absolutely fine, healthy, they are begging. Why are you begging? Why are you not doing anything? Why are you not actually, if you belong to any village, right, and if you belong to any area which has which is agricultural land, which has agricultural land, and you have a background of cultivating crops and everything, what was the urge to come to urban areas and not doing that very agricultural thing? ठीक है, okay, you can give me this argument कि अब क्योंकि महंगाई हो गई है तो वो बहुत ज्यादा पॉसिबल नहीं है कि आप जो है वो ज़राअत को बहुत अच्छे तरीके से बड़े पैमाने पे करें, but does that mean that you start begging in cities? आप begging कर रहे हो, आपको वो पैसे कोई ना कोई दे के जा रहा है, तो उसकी वजह से जो जरूरतमंद है उसको वो पैसे नहीं मिल पाते हैं, उसका हक मारा जाता है, सही है। तो वो ये तो एक ट्रेडिशन बन गया है, ये एक बिल्कुल ऐसा लगता है कि एक नॉर्म बन गया है। हर सिग्नल के ऊपर मैं बच्चों को खड़ा होके देखती हूँ, लड़कों को खड़े हुए देखती हूँ, इवन बच्चियां भी देखती हूँ जो कि भीख मांग रही होती है। क्यों? ठीक है, स्टेट नहीं कर रही कुछ भी, लेकिन मैं यकीन रखती हूँ उस बात के ऊपर कि अल्लाह ने कहा है हरकत में बरकत। आप मेहनत करेंगे, सिला अल्लाह देंगे। आप कुछ भी करेंगे, एक पत्थर भी हिलाएंगे ना तो सिला अल्लाह देंगे। क्या अल्लाह एक चूंटी को रिस्क नहीं देते हैं? क्या अल्लाह समंदर की गहराइयों में जो मछलियां हैं, और मछलियों से भी ज्यादा जो अंदर अंदर की मखलूक है वहां पे, क्या अल्लाह उनको रिस्क नहीं पहुंचाते? क्या अल्लाह जमीन की तहों में रहने वाले, रेंगने वाले जानवरों को रिस्क नहीं पहुंचाते? ऐसा कैसे हो सकता है कि अल्लाह किसी को रिस्क ना दे? जो सुबह में जो परिंदे होते हैं ना, वो भी उठ के जब कोशिश करते हैं तो उनको दाना मिलता है। ऐसे थोड़ी कि बस वो बैठे रहते हैं तो मनोसलवा उनके ऊपर उतर जाता है, नहीं। इस पूरे आर्ग्यूमेंट का, इस पूरे आपके प्रीटेक्स्ट का मकसद ये है कि जो इकोनॉमिक सिस्टम है इस्लाम का, इट इज वेरी मच कॉम्प्रिहेंसिव, राइट, and it is very much appropriate to be implemented in any society, and once you implement this system in real letter and spirit, you will see this society flourishing like anything, because you know Pakistanis are one of the most charitable people. Like they give a lot of charity, they do a lot of charity, they share everything literally. लेकिन अगर इसको सही तरीके से यूटिलाइज किया जाए, सही जगहों पे लगाया जाए,
तो क्या ये बेहतर नहीं हो सकेगा? क्यों नहीं? सी, these are the basic fundamentals, right? You have to build upon your answer on the basis of these things. आप ये याद करके ही अपने सारा जो भी एक ऐसे है या जो भी आपको क्वेश्चन एड्रेस करना होगा पेपर में, इन चीजों की बुनियाद पे, इन 4-5 फैक्टर्स की बुनियाद पे आपने करना है। और उसके बाद एड ऑन आपने क्या करना है, आपने उन वर्सेस को करना है, एड ऑन आपने उन वर्सेस को करना है जो कि इसमें रेफरेंस के तौर पे दी हुई है। ठीक है, अभी तक का सब क्लियर है? ओके, थैंक यू सो वेरी मच।